जो हम बहुत अच्छा करते हैं वो अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा। ఎస్ సో పాల్జన్ ఫిల్జర్ ఒక స్టోరీ చెప్తుంటాడు, ఎప్పుడైనా ఒక స్టోరీ చెప్తుంటాడు. ఏమంటున్నాడంటే ఒక ఐలాండ్ ఉండేది, ఐలాండ్ ఒక 10 మంది వ్యక్తులు ఉండేవాళ్ళు. ఈ 10 మంది వెళ్ళి రోజు 10 చేపలు పట్టేవారు. అయితే దాంట్లో నుంచి ఒక ఇద్దరు డిఫరెంట్గా ఆలోచించారు, ఎందుకు మనం చేపలు పట్టాలని చెప్పేసి ఒక వల తయారు చేసుకుంటారు, ఒక పడవ తయారు చేసుకుంటారు ఇద్దరు కలిసి. ఆ వల పడవ తయారు చేసుకొని వీళ్ళు సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఒక ఆయన పడవ నడుపుతుంటాడు, ఒక ఆయన వలేస్తాడు, చేపలు పట్టుకొని వస్తారు. సో ఈ 10 మందిలో 8 మంది 10 చేపలు పడతారు, కానీ వీళ్ళు ఒకటేసారి 500 చేపలు పట్టుకొస్తారు. సో అట్లా ఒకేసారి 500 చేపలు పట్టడం వల్ల అక్కడ ఏదైతే 100 చేపలు పట్టే వాళ్ళు ఇప్పుడు 500 చేపలు పడుతున్నారు. సో ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైంది, కానీ ఆ 8 మందికి పని లేకుండా అయిపోయింది. సో 8 మందికి పని లేకుండా అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో అదేవిధంగా సో అట్లా चरण जी मदद करेंगे। चरण जी मैं दोबारा हाँ मुझे कहाँ अटके मुझे पता नहीं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो पहले सालों में होता था वो अब कुछ दिनों में हो रहा है। हाँ और यही कारण है कि अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ रहा है। సో టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు మనం అన్నట్టు ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్. ఇప్పుడు ఇండియాలో అంటే చాలా మంది కోటీశ్వరులు 5 మంది వెళ్ళొచ్చు, అంటే కోటీశ్వరులు వెళ్ళొచ్చు, కానీ పని లేకుండా ఉండే వాళ్ళకి పెరిగిపోతున్నారు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ స్టోరీలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారో ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రం ఎక్కువ పని చేయడం వల్ల మిగతా వాళ్ళకి పని లేకుండా అయిపోయింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇండియాలో కూడా కొందరు కోటీశ్వరులు కావచ్చు, కానీ చాలా మంది పని లేకుండా ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది అయిపోతున్నారు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ये एक काम जो हम सबसे अच्छा करते हैं हिंदुस्तान में, हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं इस एक में, जरूर छोड़ दिया ऑलरेडी। इंद्रवीर जी कह रहे हैं हम ये स्टैट्स है 2017 में हम 133 करोड़ थे, बढ़ के अभी हम 141 करोड़ यानी कि 141 करोड़ हो चुके हैं। 2027 तक 146 करोड़ हो जाएंगे। मुझे लगता है इसको हम गलत साबित करेंगे। 140 करोड़ नहीं, हम 150 करोड़ हो चुके होंगे 2027 तक, जितनी स्पीड से हम बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ आपने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रुक नहीं रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को नौकरी पे जाना पसंद नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को काम चाहिए, लोगों के पास काम नहीं है, नौकरी पे जाना मजबूरी है। सही बात तो ये है कि लोगों को काम चाहिए। ఎస్ ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనము పాపులేషన్ ఏ విధంగా పెరుగుతుంది చూడండి. 2027 కల్లా ఇంచుమించు 150 కోట్ల కింద దాటే ఛాన్సెస్ ఉంది, రైట్. దాంతో పాటు పాపులేషన్ అనేది ఆగట్లేదు, పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. కానీ రీజన్ మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటంటే మనకు జాబ్ అనేవి అన్నీ ఉండవు. ఎందుకంటే జాబ్ పోవచ్చు ఉన్నా కానీ పోవాలనుకున్నా కానీ జాబ్ దొరకడం కష్టం, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. ये दुनिया भर की एवरेज सैलरी है और इसमें इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि इंडिया की हम सबको पता है एवरेज सैलरी स्विट्जरलैंड में क्या है 4,45,000। ये स्विट्जरलैंड है जो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाता है। सेकंड वर्ल्ड की अगर कंट्री हम देखें चाइना में, तो आप देख सकते हैं 4,534, मतलब बहुत कम फर्क है। क्लियर है स्विट्जरलैंड से अगर कंपेयर करें तो। थर्ड वर्ल्ड में अगर हम आते हैं तो इंडोनेशिया की एक एवरेज सैलरी 27,000 रुपए महीने की। इंडोनेशिया जहाँ पे पॉजिटिव एक्सचेंज है, यानी कि आप भारतीय रुपया अगर देंगे तो वहाँ पे आपको ज्यादा इंडोनेशियन रुपया मिलता है, उसकी भी एवरेज सैलरी 27,000 रुपए है। और इंडिया की क्या है बताने की जरूरत है। मैंने बहुत सम्मानपूर्वक कहा था 10 या 12,000 रुपए। किसी व्यक्ति ने कहा कि सर सरकारी आंकड़ा ये कहता है किसी एक और शहर में कि अगर आप 32 रुपए से ज्यादा बना रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, यानी कि आप गरीबी रेखा के ऊपर है। हिंदुस्तान का ये आंकड़ा कहता है। क्योंकि पता है कैसा है, जब हिंदुस्तान में बाढ़ आती है और खतरे के निशान से पानी ऊपर चला जाता है तो सरकार खतरे के निशान को और ऊपर बढ़ा देती है। शायद समझ में नहीं आया, तेलुगु में समझ में। సో ఇది యావరేజ్ సాలరీ చూసుకుంటే కనుక మనము వరల్డ్ వైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు కొంచెం అంటే ఫస్ట్ స్విట్జర్లాండ్ చూసుకుంటే యావరేజ్ సాలరీ యావరేజ్ మంత్లీ సాలరీ చూసుకుంటే 4,45,000 ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకో చైనా చూసుకుంటే కనుక మనకి ఇంచుమించు 3.5 లక్షలు ఉంది. దాని తర్వాత ఇంకోటి కింద ఉన్న నుంచి కంట్రీ థాయిలాండ్. సో ఇండోనేషియా చూసుకుంటే కనుక 25,000 ఉంది. సో అదే విధంగా చూసుకుంటే మన ఇండియాని యావరేజ్ సాలరీ చూసుకుంటే ఎంత ఉంది చెప్పే అవసరం లేదు, చాలా తక్కువ ఉంది.
లాస్ట్ वाला क्या మినిమం సాలరీ लास्ट में मैंने ये बताया कि इंडिया के అక్కడ average సాలరీ salary 10 से 27,000 ఉందట మన पर దాంట్లో 32 10,000 కూడా లేవు. अगर कोई 32 रुपए से ज्यादा बना रहा है तो सरकार के हिसाब से गरीबी रेखा के ऊपर మినిమం ఒక ప్రైవేట్లో 32 రూపాయలు, ఎక్కడైనా 10-12 32 రూపాయల కంటే ఇప్పుడు మన ఇండియాకి యావరేజ్ సాలరీ చూస్తే 10-15 వేలు ఉంది. కానీ ఒక యావరేజ్ ఒక సర్వే ఏమంటుందంటే మీరు ఒకవేళ రోజుకి 32 రూపాయల కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారంటే మీరు గరీబీ మన పేదరికం దానికి పైన ఉన్నారు. 32 రూపాయలు సంపాదిస్తున్న పేదరికానికి కొంచెం పైన ఉన్నారు రేఖలు. आपको पता है ये क्या हुआ? ఫేస్బుక్ एक लड़का, आपके बच्चे यहाँ पर होंगे, माइक थोड़ा सा शायद वॉल्यूम कम हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए. ఇండియన్ మ్యాన్ एक लड़का, आपके बच्चे जिनको आप बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, और आपको पता है कि आईआईटी में कितने से बच्चे निकल पाते हैं? कुछ हजार बच्चे आईआईटी में चल पाते हैं. एक फैमिली का एक लड़का आईआईटी खड़गपुर से पास हो गया, फेसबुक में उसको जॉब मिल जाती है, वो कनाडा जाता है. कनाडा पहुंचकर जैसे ही वो पहुंचा उसको प्रेम पत्र मिल जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया. और ये उसका स्टेटमेंट है, न्यूज में आया है, मेरी बनाई हुई घर की बात नहीं है, कि उसने कहा कि मैं अभी कनाडा उतरा हूं, मैं घर देखता उससे पहले तो मुझे ईमेल आ गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूं. ये उसके शब्द हैं. आई डोंट नो, नो आइडिया व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स. ये हाल है नौकरियों का. इस समय हम एक आईटी हब में बैठे हुए हैं और अभी खबर आई है कि अमेज़न ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया, एचपी ने 6,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया, गूगल ने निकाल दिया, बायजूस ने निकाल दिया. क्यों? क्योंकि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी गिर गई, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया. एक एम्प्लॉय और एक मालिक का रिलेशन सिर्फ एक ईमेल का होता है, सिर्फ एक ईमेल का होता है. और नौकरी की ये हाल है कि कितनी मेहनत से उसने आईआईटी पास करी, कितनी मेहनत से फेसबुक के जॉब का ऑफर मिला, और सिर्फ 3 दिन के अंदर उसे नौकरी से निकाल दिया. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మన ఇండియాలో అన్నిటికన్నా ఇంజనీరింగ్ గురించి చాలా పెద్ద సంస్థ ఐఐటి ఖరగ్పూర్ అంటేనే ఒక డ్రీమ్ డెస్టినేషన్. అక్కడ చదువుకున్న వ్యక్తికి కెనడాలో జాబ్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి కెనడాకి అతను వెళ్ళి ఫ్లైట్ దిగుతూ ఉంటేనే అతనికి నీకు జాబ్ నుంచి తీసేశామని మెయిల్ వచ్చింది. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతున్నది మనకు తెలియదు. పరిస్థితి చాలా ఘోరమైన ఉన్నది జాబ్స్ వైపు మనం చూస్తే. पर मुझे देश की इकोनॉमी से क्या लेना देना? मुझे मेरी इकोनॉमी ठीक करनी, क्योंकि देश के लिए तो मोदी जी हैं. एक प्रधानमंत्री हमने भेजा हुआ है दिल्ली में, वो कर रहे हैं देश की इकोनॉमी को ठीक. पर हम यहाँ पर आज बैठे हैं तो हमारी अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बैठे हैं. और हमारी अपनी इकोनॉमी ठीक कैसे होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि उसके लिए कोई एक बेहतर रास्ता सोचना पड़े. इस सब सिचुएशन को देखने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ एक बेहतर रास्ता खोजने के लिए तैयार हैं. कुछ एक बेहतर रास्ता, कि हाँ जिंदगी में कुछ एक बेहतर रास्ता तो चाहिए, पर मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि हम यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए आए हैं, किसी से जोर जबरदस्ती करने के लिए और कुछ प्लेज कराने के लिए नहीं आए. ఇప్పుడు డబ్బు విషయానికి వస్తే ఎకానమీ గురించి ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నది, దేశంలో ఏం జరుగుతున్నది మనకు అది అవసరమా? ఇప్పుడు అక్కడ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు ఉన్నారు కదా, కానీ ఇక్కడ మనము మన ఎకానమీ నా డబ్బు విషయం గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాము. ఇది ఒక మార్గము, మీకు మార్గం గురించి మేము చెప్తాము. సో దాని గురించి మీరు తయారు ఉన్నారా లేరా అని అడుగుతున్నాను. कितने लोग बिजनेस करना चाहेंगे? वेरी नाइस, थैंक यू. बिजनेस की हाल देखते हैं पहले क्या है बिजनेस के हाल, तब तो करेंगे. कौन सा बिजनेस शुरू करें? रिटेल बिजनेस? कोई भी एक अच्छे नगर के किसी भी शहर के एक अच्छे एरिया में दुकान खोलने के लिए, रिटेल बिजनेस खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 20 से 25 लाख रुपए तो चाहिए. ఏ బిజినెస్ చేద్దాము? ఇప్పుడు ఒక రిటైల్ బిజినెస్ చేయాలి అంటే 20 నుంచి 25 లక్షలు మనకు పెట్టుబడి కావాలి. సో ఇప్పుడు ఎట్లాంటి బిజినెస్ మనం చేయాలి ఆలోచన చేద్దాం. किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदने के लिए सबसे पहले तो सवाल उठता है कि वो बेच क्यों रहा है. पर किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदने के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत है. उसके बाद फ्रैंचाइज बिजनेस. आपको लगता है कि यार कोई अच्छा चलता हुआ ब्रांड है, उसका फ्रैंचाइजी ले ले, उसमें ज्यादा और इन्वेस्टमेंट है, 25 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और फिर भी रॉयल्टी इनकम देना पड़ेगा उसको, रॉयल्टी देनी पड़ेगी जो ब्रांड है, पेरेंट कंपनी है उसकी. और चौथा ऑप्शन जो है इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट तो तब करेंगे जब जेब में पैसा हो.
अभी जेब में पैसा नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें? पर आजकल तो एक नया फैंसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेके लोग आते हैं। श्रीनिवास जी, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप तो लखपति आदमी हैं, कैब चलाते थे पहले, अब तो मतलब अब तो अपनी मर्सिडीज लेने वाले हैं। पर इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, आपको पता नहीं होगा। अभी नया प्रपोजल मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपए दो 3 महीने तक, ठीक है, और हर महीने 1 लाख रुपए ले लो 12 महीने तक। कितना अच्छा प्रपोजल है। आपने ट्राई नहीं किया? इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी, जिसके लिए आरबीआई चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया उनका, मत करना इन्वेस्ट, मत जाना इसमें, ये इकोनॉमी को ले डूबेगा। रोजाना कंपनियां पकड़ी जा रही हैं, किसी का 30 करोड़ का घोटाला, किसी का 50 करोड़ का। अभी जयपुर में किसी ने पकड़ा है, इसमें 150 करोड़ का घोटाला। वो घोटाला करके दुबई चले जाते हैं और यहाँ पे हम पैसा 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 चिल्लाते रहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? भारत सरकार आज भी घाटे में है। अगर 1 लाख रुपए देने पे 3 महीने तक, हर महीने 1 लाख रुपए मिल सकते हैं 12 महीने तक, तो मोदी जी का पैसा लगवा देते हैं। ये बजट का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि संसद में बजट देने की जरूरत ही क्या है, इतना पैसा है देश के पास, जिसको जो कर रहा है वो करे। ఇక్కడ బిజినెస్ ఎట్లాంటి బిజినెస్ మనం చేద్దాము అనుకుంటే, ఒక ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్న బిజినెస్ మనం కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే కూడా చాలా డబ్బులు కావాలి, కానీ ఆ వ్యక్తి అమ్మాలి మనకు. ఇంకొకటి, ఒక ఫ్రాంచైజీ తీసుకుంటే 50 లక్షల వరకు మినిమం కావాలి, మళ్ళీ ప్రతి నెల వాళ్ళకు రాయల్టీ ఇచ్చేది ఉంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్, పెట్టుబడి పెట్టాలంటే మన దగ్గర ఉండాలి కదా, పెట్టుబడి ఉంటేనే మనము ఇన్వెస్ట్ చేయగలుగుతాము. కానీ ఇప్పుడు ఇంకొక కొత్త మార్గం వచ్చింది మార్కెట్లో. మీరు 3 నెలలు లక్ష ఇచ్చేయండి, దాని తర్వాత మీకు ప్రతి నెల ₹1,00,000 రిటర్న్ ఇస్తూ ఉంటామని, 1 సంవత్సరం వరకు ₹1,00,000 మీకు రిటర్న్ వస్తుందని చాలామంది చెప్తున్నారు. దాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీ అంటారు. సో చాలామంది లక్షలు కాదు కోట్లు దాంట్లో రైట్ ముంచేసినారు, వాళ్ళ డబ్బు లాస్ అయింది. ఇట్లా ఒకవేళ మనము 3 లక్షలు ఇస్తే లక్షలు రిటర్న్ వస్తుంది అంటే, మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారే అందరికీ ఇచ్చుండే కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి సంపాదన చేస్తుండే. సో ఇవన్నీ బోగస్ కంపెనీలు. ఈ దీంట్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే, పెట్టుబడి పెడితే మన అన్ని డబ్బులు పోతాయి, మనకు లాస్ అవుతాయి. అట్లాంటివి దాంట్లో మనం పోవద్దని ఆర్బీఐ అరిచి చెప్తుండే, రోజు న్యూస్ ఐటమ్ వస్తూనే ఉంటుంది. पर आजकल का एक नया फैशन है और होना भी चाहिए, बिल्कुल। चलिए अब खुद का कुछ शुरू करते हैं। पर स्टार्टअप की हालत भी कैसी है हमें पता है कि पहले 5 साल में 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, यानी कि 10 में से 9 कंपनियां फेल हो जाती हैं, एक कंपनी चलती है, और अगले 5 साल में उसमें से भी बाकी बची कुछ जितनी कंपनी 90% वो फेल हो जाती है। हमें सिर्फ 100 स्टार्टअप्स के नाम भी पता नहीं होंगे जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, पर इस 150 करोड़ के देश में सिर्फ 100 कंपनी ऐसी हैं जिसमें से 100 ओनर ऐसे हैं जिनके रियल वेल्थ का तो कुछ पता नहीं है। वैल्यूएशन भले ही हजारों करोड़ में पहुंच गया होगा, पर वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। किसका स्टार्टअप हिट होगा, किसका आइडिया हिट होगा, कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, कुछ पता नहीं, और शॉर्ट नहीं है। इसीलिए सुबह सुबह जो गाड़ी आती है, मुझे पता नहीं कचरा उठाने के लिए यहाँ पे आती है कि नहीं आती, तो वो हिंदी में बोलती है कि तेलुगु में बोलती है? तेलुगु में बोलती है। उसमें वो बोलती है क्या, तो क्या करें भैया, वो गाना बजता है यहाँ पे? नहीं बजता, हमारे यहाँ पे एक गाना बजता है, और वो गाने में वो बोलता है चिल्ला के रोज सुबह 8 बजे, तो क्या करें भैया, तो वो बोलता है आगे की लाइन में कि गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकाल। तो मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ, और आपके अंदर से भी आवाज आ रही थी कि सबकी तो ऐसी तैसी कर दिया आपने, तो करें क्या, अभी करें क्या, वो जानने के लिए कितने लोग तैयार? क्योंकि देखो सोना मत, मुझे पता संडे की दोपहर है, गुरुजी कहा करते थे सोना माने खोना, तो खो मत जाना, अपने आप को भी जगह के रखना और मुझे भी जगह के रखना। ఓకే, పండుకుంటే మీకు చాలా పెద్ద లాస్ అవుతుంది, పండుకోవద్దు, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది, మన సొంత వ్యాపారం స్టార్ట్అప్ చేసుకోవచ్చు అని. ఇండియాలో ఎంతమంది కొత్త వ్యాపారము స్టార్ట్అప్స్ అని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 90% స్టార్ట్అప్స్ 5 సంవత్సరాల లోపలే ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎంతమంది ఉన్నారు, 100 మంది కూడా మనం లెక్క పెడితే లేరు ఇండియాలో. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో ఏం చేయాలి, అదే క్యాక్ అనేది అక్కడ ఉన్నది. మన దగ్గర పొద్దున చెత్త బండి వాళ్ళు వస్తారు, విజిల్ కొడతారు ఫుర్రు అని. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర
तो క్యా కరే అని అడుగుతారట. క్యా కరే అంటే చెత్త తీసుకొచ్చి బయట మాకు ఇవ్వండి అని వాళ్ళు అరుస్తారట. సో మనం కూడా ఏం చేయాలి మరి, నేను బిజినెస్ చేయాలా లేకపోతే సంపాదన చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఒక ప్రశ్న ఉన్నది మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాని గురించి చెప్తారు, వినండి. इमेजिन कीजिए अमेज़न से कितने लोग सामान खरीदते हैं? सब लोग फ्लिपकार्ट अमेज़न से सामान खरीदते हैं. अमेज़न का तो ऑफिस है यहाँ पे. कम लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोले इसमें क्या बात है, अमेज़न से तो सब सामान खरीदते हैं. आज तक अमेज़न ने आपको कोई पैसा दिया? अमेज़न के बारे में कैसे पता चला? अगर सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी दोस्त ने बताया. फेसबुक को आपने कैसे ज्वाइन किया? फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं देखा होगा, दोस्त बताया. पर किसी दोस्त ने इन्विटेशन भेजा, आप एक्साइटेड हो रहे हो, फेसबुक ज्वाइन किया? नहीं किया, अभी तो मम्मी के साथ मैं नहीं कर रहा, अकेले मत कर. किसी ने बताया होगा, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अमेज़न ने कोई पैसा नहीं दिया. आप बाजार में जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपए होता है. जब वो मार्केट में आता है उसका कॉस्ट 100 रुपए हो चुका होता है, क्योंकि बीच में C&F ने पैसा लिया, रिटेलर ने पैसा लिया, और बीच में उछल के MS धोनी आ जाते हैं टीवी पे मुस्कुराने के लिए कि मेरी मुस्कुराहट का राज कोलगेट है. फिर वो रिटेलर के पास जाता है, एजेंट के पास जाता है, उसके बाद हमारे हाथ में आता है. हमारी जेब से 100 रुपए लगे, हम खुशी खुशी वो 100 रुपए इन सब लोगों में बांट कर आ गए. MS धोनी जो हमर चलाते हैं उसकी किस्त EMI कौन देता है? कौन देता है? MS धोनी खुद देते हैं. MS धोनी की जेब में पैसा किसने दिया? आप बोलेंगे कोलगेट ने दिया. कोलगेट को पैसा किसने दिया? मैंने दिया. मैं खुशी खुशी वो पैसा उन सब लोगों में बांट कर आ गया और मुझे कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला. इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो जिसमें यदि आप अमेज़न से सामान खरीद रहे हैं और अमेज़न आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप एक कस्टमर मेरे पास ले आए तो ये 40% का मार्जिन है जो आज मैं किसी और को दे रहा हूं, किसी ब्रांड एम्बेसडर को दे रहा हूं. आप लोग मेरी तरफ देखिए, वो जिनका इंतजार कर रहे हैं वो तो सेटल डाउन हो जाएंगे. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इशारे ना करें, क्योंकि फिर लोग आपके इशारे देखते हैं, क्योंकि लोगों को मेन प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंटरेस्ट है कि खुराफाती क्या चल रही है, कुछ गड़बड़ है क्या. तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बैठ के इशारे करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि अमेज़न अगर आपको ये बोले कि अगर आप एक कस्टमर मेरे पास लेकर आते हैं और वो जो बीच का 40% मैं आज ब्रांड एम्बेसडर्स में बांट देता हूं, वो पैसा मैं आपको दे दूंगा, तो सौदा कैसा है? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా మంది అమెజాన్ నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్ కొంటూ ఉంటారు. సో కొనుక్కుంటే మీకు ఏదైనా లాభం వచ్చిందా? ఏం లాభం రాలే కదా. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉన్నది, ఈ వీళ్ళు ఎవరైతే సామాన్ అమ్ముతున్నారో అమెజాన్ మీద, దాని నుంచి మీకు ఎట్లాంటివి ఇన్కమ్ రాలేదు. కానీ ఒకవేళ ఇట్లాంటివి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటివి ప్లాట్ఫామ్ మీకు రైట్ ఒక 40% మీకు కమిషన్ ఇస్తాము, దాని నుంచి మీకు ఇన్కమ్ ఇస్తాము అంటే మీకు బాగానే ఉంటుందా? మీరు తీసుకోవడానికి తయారున్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? तो क्या एक ऐसी दुकान से सामान लेना चाहेंगे जो ये बात बोले कि आप सामान तो ले लो, पर अगर एक कस्टमर आप साथ में ले आते हो, किसी को रेफर करते हो, तो जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं. कितने लोगों ने पठान देख ली? मुझे पता नहीं तेलुगु में ट्रांसलेट होती है कि नहीं होती है पठान. नहीं, यहाँ की कोई अच्छी मूवी बताओ ना. करण जी ने भी नहीं देखी होगी. कौन देखते हैं तेलुगु? पवन जी आप देखते होंगे. कौन सी मूवी है तेलुगु की अच्छी मूवी? ఇక్కడ ఒక సీట్ ఖాళీ ఉంది. बाहुबली तेलुगु में थी. बाहुबली कितने लोगों ने देखी? सबने देखी होगी बाहुबली, राइट. बाहुबली कितने लोगों ने देखने के बाद अपने 10 दोस्तों को बताई बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी. बाहुबली के डायरेक्टर ने आपको कोई पैसा दिया? అక్కడ ఒక సీట్ ఉంది సార్. तो क्या होगा సార్ अभी पठान में रिलीज हुई है సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు ఇద్దరు ఇక్కడ కూర్చోండి. ट्विटर में किसी ने कहा शाहरुख खान से कि आपकी मूवी ने 700 करोड़ कर लिया, 1 करोड़ फैंस को दे दो. सच में ఆయన కదా అక్కడ 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 शाहरुख ने मना कर दिया, बोले नहीं यार 10 लोगों को और दिखा दे, बस पैसा नहीं मिलेगा. మీరు దుగ్గు ఆయన अरे 1 करोड़ अपने को मिल जाता तो अपन यहाँ नहीं बैठे होते, अपन पठान को प्रमोट कर रहे होते. जाओ सब लोग
पठान यहाँ नहीं टिकट लेके बैठे हो, पठान का टिकट ले रहे हो। पर शाहरुख खान ने कोई पैसा नहीं, तेलुगु ఒకటే సీట్ అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు కొన్న తర్వాత ఒక వ్యక్తికి ప్రమోట్ చేస్తే మీకు కొంచెం డబ్బు వస్తుంది అంటే మీరు ప్రమోట్ చేస్తారు కదా. ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమా ఉన్నది, బాహుబలి చాలా మంది చూశారు, కొంతమందికి చెప్పారు మీరు కూడా చూడండి బాగుంటుందని. సో వేరే వాళ్ళకు చెప్తే వాళ్ళు కూడా సినిమా చూశారు, కానీ మీకు ఏదైనా వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారా? ప్రమోషన్ మీరు చేశారు. ఇప్పుడు పఠాన్ సినిమా ఉన్నది, రైట్, షారుఖ్ ఖాన్ 700 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఈ సినిమా చేసిందని ట్విట్టర్లో ఒక వ్యక్తి అడిగినారట, సార్ మీకు ఇంత టర్న్ ఓవర్ వచ్చింది, కలెక్షన్ వచ్చింది, 1 కోటి రూపాయలు మీ ఫ్యాన్స్కి ఇచ్చేయండి సార్ అంటే ఆయన ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఇంకా 10 మందికి చెప్పండి అని అన్నారట. సో ఒకవేళ ఆయన 1 కోటి రూపాయలు ఫ్యాన్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తే ఆ ఫ్యాన్స్ ఏం చేస్తారు, అందరికీ చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తారు, వెళ్ళండి సినిమా చూడండి, వెళ్ళండి సినిమా చూడండి. కానీ అక్కడ అట్లా జరగలేదు. कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। पिक्चर बनाए कोई और, पैसा किसी और का लगा है, कुछ नहीं। एक्टिंग कर रहा है शाहरुख खान, देख कोई और है, पैसा कौन बना रहा है? बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही बिजनेस मॉडल अगर हो जिसमें प्रोडक्ट कोई और बनाए, और हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उस दुकान से ना लेकर उस दुकान से ले जो व्यक्ति ये प्रॉमिस करता है कि सुनो, वो पैसा जो मैं MS धोनी को दे रहा था, MS धोनी मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, मेरा यूजर ही मेरे लिए ब्रांड एम्बेसडर है, वो पैसा मैं आपको ही दे दूंगा ताकि आपकी जेब में जो पैसा अभी तक नहीं आ रहा था वो आने लग जाएगा। तो सौदा कैसा है? और ऐसी ही बिजनेस मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें जो आज तक 40% पैसा आप खुशी खुशी दूसरे लोगों को देते हुए आ रहे हैं, वो पैसा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान खरीदने पर, उससे बेहतर क्वालिटी का सामान खरीदने पर हमारी ही जेब में पैसा आ जाए, इससे अच्छा कोई सौदा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे हाँ नेटवर्क मार्केटिंग सुना तो है, डायरेक्ट सेलिंग सुना तो है, पर मैं किसी से जाके बात नहीं कर सकता, मैं किसी को जाके बता नहीं सकता। कोई जरूरत नहीं है, किसी को मत बताइए। इतना ही अच्छा मॉडल हो जाए तो शाहरुख खान के पठान और बाहुबली वाले मॉडल को थोड़ा अपग्रेड कर दे, और वो व्यक्ति ये बोले कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा मेरी फिल्म का, टीवी पे ऐड नहीं आएगा, न्यूज चैनल पे कोई इंटरव्यू नहीं आएगा, मैं सिर्फ कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा, उनको फिल्म अच्छी लगेगी तो वो कुछ और लोगों को इनवाइट करेंगे, और आप जो टिकट लेंगे उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो टिकट का पिक्चर देखने का 250 रुपया देते हैं, उस टिकट को सिर्फ 100 रुपये में पिक्चर देखने को मिल जाए, तो सौदा फिर भी अच्छा ही है। और फिर 100 रुपये में टिकट लेने के बाद अब पिक्चर हमको अच्छी लगे, हम उसको प्रमोट कर दें, तो हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो उस फिल्म से 1 करोड़ भी कमा सकता है। तो पोटेंशियल तो है, क्योंकि जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिकता है, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ से बिक रहा है, जैसे कोई फिल्म एक वर्ड ऑफ माउथ से चलती है, और उसको प्रमोट करके कोई अगर ऐसा मॉडल बन जाए तो वो तो हाइपोथेटिकल है, पर ये मॉडल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एग्जिस्टिंग मॉडल है, जिससे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं कि उनकी यूसेज पे ही उन्हें कुछ पैसा मिल जाए हर महीने, और यदि वो यूज करते करते उसे प्रमोट भी कर दे तो वो लाखों रुपए महीने के बना सकते हैं। तो मॉडल बहुत काम का है, और वही मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఉన్నది, ఎక్కడైనా మీ పక్కనే సీట్ ఖాళీ ఉంటే ఇట్లా చేయలేపండి, మీ దగ్గర వచ్చి వాళ్ళు కూర్చుంటారు, అక్కడక్కడ నిలబడి ఉన్నారు చాలామంది, ఎక్కడైనా సీట్ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళండి మీరు, जहाँ भी सीट खाली हो अवेलेबल हो, आप लोग अगर बैठना चाहें तो वहाँ बैठ सकते हैं। అక్కడ అక్కడ వెళ్ళి समय जी చేయడానికి అక్కడ క్రికెటర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు. ఓకే, అట్లాంటిదే ఇప్పుడు ఒక సినిమా గురించి అనుకోండి, బాహుబలి కావచ్చు లేకపోతే పఠాన్ కావచ్చు, ఒక ఆఫర్ వచ్చింది అనుకోండి, మోడల్ చేంజ్ చేసి మీరు నేను ఒక 100 మందికి పిలిపిస్తా, సినిమా చూపెడతా, మీకు మంచిగా అనిపిస్తే మీరు ఇంకా 100 మందికి చెప్పండి, మీరు ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చి టికెట్ ఇచ్చి మీరు ఏవైతే సినిమా చూస్తున్నారో దాని నుంచి మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది, ఇంకా మీరు వేరే వాళ్ళకి చెప్తే ఇంకా మీకు ఇన్కమ్ వస్తుంది, అంటే ఆ మోడల్ బాగుంటుంది కదా. ఓకే, ఇట్లాంటి మోడల్కే మీరు పేరు విన్నారా లేరా, కానీ దానికే అంటారు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ అంటారు. సో ఆ నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారానే రైట్ కొంతమందికి నోటి ద్వారా చెప్తే, మౌత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటారు, నోటి ద్వారా చెప్తే రైట్ వినియోగదారులు ఇంకా తయారు చేసేవాళ్ళు
వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు, మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ మధ్యలో మీకు ఇన్కమ్ రావచ్చు. ఇట్లాంటి మోడల్ మీదనే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं तो बात समझ नहीं आती, पर किसी एक अथॉरिटी से बात सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाती है. इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं अनुरोध करूंगा ट्रांसलेटर से कि वो पॉइंट नोट कर लें, उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो ट्रांसलेट कर दें. ये वीडियो हिंदी में है और हमसे प्ले कर रहे हैं. ध्यान से इसे देखिएगा, सेटल डाउन होकर देखिएगा. थैंक यू. ఈ వీడియో చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. इंडस्ट्री जो नहीं कहती कि आपका भविष्य आपके गुजरे कल के हिसाब से हो, दूसरे कल को छोड़ो. अब आपको कैसे ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो. बाकी सारे एम्प्लॉयर बस ये सोचते हैं कि आपको जो ऑलरेडी आता है उसे कैसे निचोड़ के निकाला जाए. नेटवर्क मार्केटिंग में ताकत है अमेरिका और पूरी दुनिया को बचाने की, क्योंकि ये लोगों को सिखाता है कि नौकर नहीं मालिक बने. डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से अगर दुनिया की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जोड़ दिया जाए तो वो $178 बिलियन या 12,460 अरब रुपए की सालाना रिटेल सेल करते हैं. आइए समझते हैं कि ये कितना बड़ा होता है. नेशनल फुटबॉल लीग साल के $9 बिलियन या 630 अरब रुपए बनाती है. म्यूजिक इंडस्ट्री साल के $16 बिलियन या 1,120 अरब रुपए, और मूवी इंडस्ट्री साल के $80 बिलियन या 5,600 अरब रुपए. एवरेज निकाला जाए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज 178 बिलियन का करीब 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं. यानी साल के $71 बिलियन, यानी महीने के $6 बिलियन, यानी $200 मिलियन या 1400 करोड़ हर दिन की कमीशन. मतलब ये काम कर रहा है और लोग बहुत पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में. जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं. मार्केट में ज्यादा फैल रही है और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या हैं. आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है. लोग पैसे बना रहे हैं, कंपनी मुनाफा बना रही है, लोगों में काम करने का जोश है, प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच रहा है. शायद हमें भी ये करना चाहिए. कुछ लोगों को लगता है केवल ऊपर के लोग पैसा बनाते हैं. आइए ये भी देख लेते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं. अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का. यानी साल के 71 बिलियन में से $1 बिलियन गया, बचा $70 बिलियन. तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के हजारों डॉलर्स तक बनाते हैं. ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं. हर दिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हुए पैसों से अपने लोन चुका रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं. मैं जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले को जानता हूँ वो 50 के दशक से ऐसा कर रहे हैं. वो काम पे जाते हैं जब उनका मन होता है, वो काम बंद कर देते हैं जब वो अपने बच्चों के साथ समय निकालकर घूमने जाना चाहते हैं, उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, जब वो घर जाते हैं तब काम वापस शुरू हो जाता है. सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी वो ये कि लोग ज्यादा खुश हो गए हैं जिंदगी में. MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया और मैंने उनसे बात की 67 कंट्रीज में. किसी भी दूसरे बिजनेस के होगा 0 से करोड़पति. अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा. बहुत सारे लोग इसको अपना फुल टाइम करियर बना रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा रहा है जिसको भी मैं जानता हूँ उसके लिए, क्योंकि उन्होंने इसमें सीरियसली काम किया और बहुत सफलता हासिल की. एक के बाद एक बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी है और उनके खरीदे सामान भी देखे हैं जो इस बिजनेस से उन्होंने लिए. कितने लोग इस बिजनेस में हैं? करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं. एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं. तो नेटवर्क मार्केटिंग में जम गए. तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को बड़े ध्यान से देखा है और समझने की कोशिश की कि क्यों लोग इसको लेकर इतने कंफ्यूज्ड हैं कि ये बिजनेस है या नहीं.
एक बात है, लोग पिरामिड से डर जाते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे ये तो वही पिरामिड स्कीम है। बाहर बहुत सारे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं और उनको लगता है कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है, ये पिरामिड है। हर कॉर्पोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है, सबसे नीचे हजारों एमबीएस काम करते हैं। కాబట్టి కియోసకి अब वो कोका-कोला के साथ काम करते हैं अगर ये सारे एमबीएस अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है। सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा और 10 साल में एक। బుక్ రాసి जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहाँ हैं और आपके पीछे और सीईओ आते जाते हैं, तो ये एक उल्टा पिरामिड है। नेटवर्क मार्केटिंग का कौन सा बड़ा सिंपल है? अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, काम के अनुसार पैसा। कोई भी कभी भी पैसा कमा सकता है, इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। यानी खर्चा ज्यादा तो कमाई ज्यादा, ऐसा नहीं, जितना काम उतना पैसा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान का क्या शेप है, पिरामिड हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो या कुछ भी हो। अगर पैसे सिर्फ लोगों को जोड़ने से बन रहे हैं तो कुछ गलत है। लेकिन अगर कंपनी से जुड़े लोग पैसे कमा रहे हैं, सेल्स होने के कारण, भले ही वो सेल लोगों को जोड़ने की वजह से हुई हो, तो आप बिल्कुल सही कंपनी है, बिल्कुल लीगल है और यही सच्चाई है। एक और प्रॉब्लम जो पहले होती थी, अभी प्रॉब्लम नहीं होती, कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के पास प्रोडक्ट्स का भंडार होता था जो वो नहीं बेच पाते थे और नुकसान उन्हें सहना पड़ता था। उनके घर में, किचन में सामान पड़े रहता था जो वो या तो नहीं बेच पाते थे या नहीं बेचना चाहते थे, और वो प्रोडक्ट उनके पास ही पड़ा रह जाता था और वो नाराज हो जाते थे। पहले ऐसा होता था कि आप 25,000 का सामान एक साथ ले तो डिस्काउंट मिलता था या कमीशन ज्यादा मिलती थी। आजकल सब कंप्यूटर पे हो जाता है, वेयर हाउस से सामान जाता है, आपको घर पर जमा करने की जरूरत नहीं। अब पेपरलेस काम हो गया है, सब ऑनलाइन होता है, बैक ऑफिस सब हैंडल करता है, आपका काम काफी कम हो गया है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। तीसरा प्रॉब्लम, लोग बोलते हैं 99% लोग